Hello everyone, this is Ritu Poda, Head of Mutual Fund Research and Product. Welcome to Number One Pause podcast. I have Mr. Manish Gunwani here. He is Head of Equities at Bandhan Asset Management. So Manish, let's talk about Bandhan Small Cap Fund. Uh, Small cap space में अगर हम देखें, there are 600 plus kind of stocks available. What's your criteria to select stocks from this particular universe? Yeah, so one simple formula we have when we buy a stock in small cap fund. Again, most funds are benchmark centric for us, but I think small cap में आपको थोड़ा absolute return mindset भी चाहिए. तो हमारा जो key criteria है when we add a stock or we buy more of the same stock in small cap fund, I think we want to see a very high chance कि ये स्टॉक डबल होगा 3 to 4 years. मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि देखिए 3 to 4 years is roughly 18 to 24% annualized return. हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप इंडेक्स विल डू let's say if I take a 10-20 year view, maybe somewhere around 13 to 15% return. तो उसको अगर हमको बीट करना है तो अगर इफ़ वी एम फॉर 18 to 24%, और ये भी होगा कि इफ़ आई बाय 10 स्टॉक्स आई विल गो रॉन्ग इन 2 or 3 maybe 4 of them also. So blended basis, if we can generate with this thought process कि 18 to 24% CAGR on 3-4 year basis for every stock, given that we will miss a few, we will still be able to be handsomely above small cap index. So we've kind of created this thumb rule कि when we buy a stock, we should think कि ये stock का earning और PE re-rating अगर हो सकता है, तो there should be a very high chance कि in 3 to 4 years it should double. Otherwise, we are okay sitting on some cash. Like today also we have 8-10% cash. If you don't get enough of these opportunities, then we wait when market corrects or something like that. So mostly I think small cap is a bottom up approach only. Yes. But देखिए it is bottom up, but इसमें एक थोड़ा वो है कि हम ना ज़्यादा सेक्टर से अलग नहीं होते हैं बेंचमार्क के अगेंस्ट. तो जैसे अगर बेंचमार्क में फिनेंशियल्स 15% है तो we might be 8, we might be 10, we might be 20, बट ऐसा नहीं होगा कि हम 0 होंगे या 50 होंगे. So we like to think of bottom up within sectors and then not take a big call on sector, because you see sector का परफॉर्मेंस ना वो मैक्रो वेरिएबल से ज़्यादा होता है. जैसे हमने अभी देखा है कि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया था और रुपी थोड़ा वीक हो गया था तो काफ़ी एक्सपोर्ट सेक्टर डिड रिलेटिवली बेटर, एंड देन सडनली डॉलर ड्रॉप एंड नाउ डोमेस्टिक सेक्टर्स लाइक फिनेंशियल्स आर डूइंग बेटर. तो ये सब हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे ऑनेस्टली कि आप बोलोगे कि 5 साल में रुपी 86 होगा या 89 होगा या 92 होगा, वो तो हम प्रेडिक्ट कर नहीं पाएंगे. तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जो वो बेंचमार्क में जो भी सेक्टर है उससे थोड़ा रीजनेबल डिविएशन लेंगे, बट बहुत एक्सट्रीम डिविएशन नहीं लेंगे. सो इंडेक्स के, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लगता है कैन रिफ्लेक्ट द मेक इन इंडिया स्टोरी और द आत्मनिर्भर भारत जो स्टोरी चल रहा है? देखिए इन जनरल ना ये हॉट वर्ड्स हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ स्पेशल रोल नहीं है ये हॉट वर्ड का. जो इग्नोर्ड सेक्टर्स है समटाइम्स दे आल्सो डू वेल. यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ framework for how you're seeing the global economy to how you think Indian economy will shape up, how you think which part. देखिए इकोनॉमी में 4 पार्ट्स होते हैं: प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स ब्रॉडली. तो थोड़ा कॉल इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पार्ट रिलेटिवली बेटर कर रहा है एक्सेट्रा. स्मॉल कैप स्पेशली वी डोंट स्टार्ट बाय सेइंग कि हमको मेक इन इंडिया प्ले करना है या ये प्ले करना है. अल्टीमेटली एज आई सेड हमारा थोड़ा मैक्रो फ्रेमवर्क है, मोर बॉटम अप वर्क है.
अगर हमको नहीं लगता है कि ये स्टॉक 3-4 साल में डबल होगा, तो जनरली वी ट्राई टू अवॉइड. Okay. इट कुड कम फ्रॉम एनी सेक्टर, मतलब. Okay. So the question was, I mean, mostly it was like, because lot many new emerging sectors are there and they are coming to the pictures. Yeah. So small cap is one of the index जो आपके वो sectors को incorporate करता है. So that is the reason I think probably आप across board. तो अगर आप 3-4 डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो होल्डिंग्स हैं, अगेन वी थिंक ऑफ इट इन अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स. एक तो जैसे आपने कहा कि एक इमर्जिंग थीम या सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सो वी हैव सम स्टॉक्स इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. फिर एक थीम होता है कि एक बड़े सेक्टर में देयर इज अ स्मॉल कैप कंपनी विच इज गॉट बेटर मैनेजमेंट और दे आर एबल टू एग्जीक्यूट बेटर, सो देयर ग्रोथ इज बेटर. So we have a lot of stocks where these are traditional industry like banking, FMCG, but कुछ niche है about a smaller company which is allowing them to grow better, have better profitability than the large guys. Okay. एक तीसरा ये भी है कि we have a lot of special situation stocks, जैसे holding companies हैं या कभी metal और PSU banks which are way below book value or replacement value. जो इन वन सेंस दे कॉल इट सिगार बट इन्वेस्टिंग की 30-40% मिलेगा तो बेच दो. तो वी आर क्वाइट निम्बल दैट वे. हम लोग का ऐसा नहीं है कि एवरी स्टॉक वी नीड टू होल्ड फॉर 10 years. सो इफ वी सी अ स्टॉक वेयर इन 2 years it can give us 50, 70, 100% रिटर्न, बट देन वी हैव टू सेल इट, देन वील डू इट. सो समटाइम्स ये होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट बहुत बढ़ जाता है बेयर मार्केट में. बुल मार्केट आता है तो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट कम हो जाता है. तो वी हैव स्पेशल सिचुएशन ऑल्सो. So we have different kinds of ways to create alpha in a way. And we don't have a fixed mindset ki what percentage of portfolio should be what. Of course, since India is generally a fast growing economy, growth at reasonable price का जो style बोलते हैं वो ज़्यादा होगा portfolio में obviously. But ऐसा नहीं है कि we don't go into special situations, thematic, cyclicals. So we do everything here. Okay. So here अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो आगे आने वाले समय के लिए 2 या 3 साल के लिए क्या रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं? Definitely. I think ideally 3 to 5 year is what I say should be the time frame, because देखिए we are starting at a point where valuations are not very cheap. Maybe in 2023 में even in 2 years I could have said, but today I just want to be a bit more cautious, but I'm not very defensive also. So because मुझे क्या लगता है ना, दुनिया का भी मैक्रो जो नेक्स्ट 5-10 years में है वो ऐसा है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ कम है क्योंकि डेमोग्राफिक्स इज अ चैलेंज, डेट इज़ वेरी हाई विद गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा, बट लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली आर नॉट इनफ टू कवर इन्फ्लेशन. तो आप देखेंगे कि कोई भी मेजर इकोनॉमी में टुडे एंड इंडिया में पोस्ट टैक्स आप देखेंगे कि एफडी का जो रिटर्न है वो आपको ब्रॉडली इन्फ्लेशन इक्वल कर रहा है. यू आर नॉट मेकिंग बिग मनी आफ्टर इन्फ्लेशन. तो क्या होगा कि पीपल विल बी फोर्स्ड इनटू थोड़ा रिस्क एसेट्स टू जनरेट रिटर्न्स विच आर अबव इन्फ्लेशन. तो लिक्विडिटी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है नहीं दुनिया में. तो वेरेवर नीशेस जो छोटे सेगमेंट्स में ग्रोथ है, जो छोटे कंपनी में ग्रोथ है, वो हमको टैप करना ज़रूरी है. तो मुझे लगता है कि अगर जो 3-5 साल का व्यू है, जो ये रीसेंट वैल्यूएशन थोड़ा स्टिफ है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी थोड़ी हाई है, तो नेक्स्ट 6-12 मंथ कुछ भी हो सकता है. बट आपके पास अगर पेशेंट मनी है जो आप 5 साल नहीं देख सकते एंड यू कैन टेक दैट रिस्क, then I think small cap is the best fund to be. Okay. So any 3 advice you would like to give to retail investors who are entering in a small cap space basically? Because mostly we have seen in the last 3-4 years, portfolios are overweight on small and mid cap space. And तो जैसे हमने डिस्कस किया, सोशल मीडिया ज़्यादा ना देखें, न्यूज़ ज़्यादा ना देखें, NAV ज़्यादा ना देखें. First of all, that is what will unnerve you sometime. I do expect volatility to be high, so I think first is
they should not get carried away by these 1 month, 3 month performance. Second is, see, we will hold lot of stocks. Lot of people ask us कि हमारे पास 150 stocks है, 170 stocks है, and therefore performance is difficult. But आप इस तरीके से सोचें कि अगर लार्ज कैप का यूनिवर्स 100 है तो कोई भी लार्ज कैप फंड में 50 स्टॉक लेते हैं. हमारा तो यूनिवर्स 600 है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिवर्स यू शुड थिंक अबाउट, नॉट की एब्सोल्यूट नंबर ऑफ स्टॉक्स. एंड थर्ड इज, आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट इज सुपर इम्पोर्टेंट इन स्मॉल कैप. देखिए क्या होता है ना कि एंड ऑफ द डे ये बिजनेसेस थोड़ा ज़्यादा फ्रेजाइल है वर्सेस लार्ज कैप. अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया, अगर कुछ रेगुलेशन आ गया, अगर कोई CEO छोड़ दिया, तो इनके पे जो बिजनेस इम्पैक्ट होता है वो लार्ज कैप के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है. सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क है, बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, बट if we are able to even with 160 170 stocks build this framework कि 3 to 4 years में जो double होगा and execute it well, no one will have 100% hit rate obviously. Clearly I think that kind of return profile will justify all this volatility and heart attack we get periodically. So thank you, Manish. Thank you for everyone watching us. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.